Okay, so today we are starting with formal letters. Come to the introduction. Okay, I'm reading. ध्यान से पढ़ते जाना. Letters are a traditional and popular method of communication. A letter is a written message which is sent from one party to another and contains an important information. Letters perform the function of bringing friends or relatives close together, enhancing professional relationships and providing a means of self-expression. ठीक है? Now there are two types of letters, formal and informal. ये आपको कोई पूछने वाला नहीं है, just plain theory है. So there are two types. One is informal letter. Informal नाम से समझ के आ रहा है that language काफी casual होगा, friendly होगा. There would be no format. ठीक है? देखो, informal letters are letters which are written to people we are familiar with, like relatives and friends. इसको underline कर लो. It is sent to relatives and friends. They are used for casual and personal communication. While writing informal letters, we make use of personal and emotional tone. Personal and emotional tone. The language and the tone of the letter depends upon the level of comfort. There is no specific format prescribed for writing informal letters. ठीक है? तो ये आपको एग्जाम में नहीं आएगा. आपको एग्जाम में फॉर्मल लेटर्स ही पूछेंगे. ओके? अब देखो, फॉर्मल लेटर्स दे आर यूज्ड फॉर ऑफिशियल एंड प्रोफेशनल कम्युनिकेशन. They are written with particular, well-defined objective in mind and not for the sake of arbitrary correspondence. As opposed to informal letters, there is a manner prescribed for writing formal letters. मतलब इसमें आपको फॉर्मेट लर्न करना पड़ेगा. Then they make use of formal language. देखो नेक्स्ट लाइन पर लिखा है. ठीक है, that's it. ये कुछ ज्यादा थ्योरी मत पढ़ो. Yeah, come to the next page. Points to remember while drafting formal letters. ठीक है, ये थोड़ी सी थ्योरी है. अगेन दिस इज ऑल्सो नॉट अ थियोरटिकल क्वेश्चन. ये नहीं पूछेंगे एग्जाम में, ये सिर्फ आपके लिए है. क्या लिखा है? यूज द स्पेसिफाइड फॉर्मेट, लीव अ लाइन बिटवीन पैराग्राफ्स, स्टेट योर रीजन फॉर राइटिंग इन योर फर्स्ट पैराग्राफ. कि आप क्यों लिख रहे हो लेटर, ये फर्स्ट पैराग्राफ में आना चाहिए लेटर के. कीप द लैंग्वेज सिंपल, add details and information. If you wish to make reference to your previous letters, payments etc, provide details. मतलब क्या, मैं ये लेटर में लिख रही हूँ कि मैंने पहले भी आपको एक लेटर लिखा था. ठीक है? तो if I want I can give reference in this current letter. Always be gentle and courteous, be polite, check to ensure that your letter is free from any mistakes, that is grammatical or spelling. Okay, so this is I think basic. इसमें भी कुछ learning part नहीं है as such. अब नीचे देखोगे तो एक फॉर्मेट दिया हुआ है जो आपको पिट पैट करना पड़ेगा. फॉर्मेट ऑफ फॉर्मल लेटर. फर्स्ट कम्स द सेंडर्स एड्रेस, देन इज द डेट, फिर जिसको भेज रहे हो उसका नाम, देन द नेम ऑफ द एड्रेसी, सॉरी एड्रेस ऑफ द एड्रेसी, ये नेम ऑफ द एड्रेसी. पहले जो भेज रहा है उसका एड्रेस आएगा, देन डेट, फिर जिसको भेज रहे हो उसका नाम आएगा और उसका एड्रेस आएगा. Then comes the sir oblique ma'am, फिर subject, फिर introduction, body, conclusion, complimentary clause, yours truly, yours faithfully, whatever it is. फिर signature आएगा. signature में you do not have to sign ना, पेपर में साइन मत करके आना, just you can write your name or any name rather. and फिर आपका क्या designation है, you're the manager, general manager or whatever it is. one thing to be noticed is ये जो सारी चीजें हैं ना, ये लेफ्ट हैंड साइड पे आती हैं. कोई भी चीज राइट हैंड साइड पर नहीं जाएगी. फॉर्मेट पर भी कम से कम 2 मार्क्स होंगे. आउट 5 मार्क्स का लेटर आएगा, 2 मार्क्स का तो सिर्फ फॉर्मेट ही होगा. यू मिस ऑन टू एनी पॉइंट, डायरेक्टली हाफ मार्क कट कर लेंगे. यू मिस ऑन टू डेट, हाफ मार्क कट कर लेंगे. सो यू हैव टू, दैट इज व्हाट आई एम सेइंग, पिट पैट कर लो फॉर्मेट को. ठीक है? हाँ, लिखना ही पड़ेगा. सब्जेक्ट, देन कोलन एंड देन यू हैव टू राइट. जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है ना, प्लेसिंग एन ऑर्डर फॉर ऑफिस फर्नीचर. ये देखो कल हमने किया था ना ऐसा. हाँ, नहीं ये नहीं ड्रॉ करना है, बॉक्स नहीं ड्रॉ करना है. हाँ, ये जस्ट इन्होंने फॉर्मेट बताया. अभी हम देखेंगे ना सैंपल्स. सी यू कैन जस्ट ये रीड कर सकते हो. सेंडर्स एड्रेस, डेट, सैल्यूटेशन वापस से रिपीट किया गया है. सब्जेक्ट, कंटेंट, कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज में आप ये कुछ भी चूज कर सकते हो. योर्स ट्रूली, योर्स सिंसियरली. ठीक है? विद अप्रिसिएशन, व्हाटएवर. नाउ come to now in this chapter you are going to study 5 or 6 types of different letters. ठीक है?
पहले ये लेटर पे आ जाओ, दिस इज अ सिंपल वन, ऑर्डर लेटर, सेकंड वाला लेटर, ऑर्डर लेटर क्या होगा इसमें, यू आर प्लेसिंग एन ऑर्डर, ठीक है। देखो इंट्रोडक्शन, ये जो थ्योरी है ना, हर लेटर स्टार्ट होने से पहले आपको कुछ थ्योरी दी गई होगी, सिर्फ प्लेन रीडिंग, डू नॉट लर्न इट, ठीक है। आपको ये लिखना होगा एग्जाम में, आपको ये नहीं पूछेंगी, ठीक है। तो अभी हम सिर्फ प्लेन रीडिंग कर रहे हैं। देखो, एन ऑर्डर लेटर इज रिटन बाय अ बायर टू द सेलर, by a buyer to the seller requesting him to deliver the goods. These letters include three major types. Details about the item, आपको क्या क्या चाहिए आपको वो बताना पड़ेगा, कौन सी कितनी क्वांटिटी चाहिए, कौन से ब्रांड का चाहिए, राइट, यू हैव टू मेंशन ऑल द डिटेल्स। नेक्स्ट, इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू शिपिंग, कि कब तक डिलीवर होगा मेरे घर पे, विद इन हाउ मेनी डेज, एंड आपने कितना पे किया है, या आप वो लेटर के साथ कोई डिमांड ड्राफ्ट अटैच कर रहे हो, या यू कैन गिव द जीपे के डिटेल्स और व्हाटएवर इट इज, ठीक है। सो ये थ्री मेजर थिंग्स आएंगे लेटर में। नाउ कम टू द सैंपल पार्ट। देखो लेटर में फर्स्ट चीज क्या आती है, सेंडर्स एड्रेस, तो यहाँ पर एड्रेस दी गई है, ठीक है। नाउ जो आपने फॉर्मेट लर्न किया है ना, दैट इज अ जनरल फॉर्मेट, ठीक है। नाउ इन ऑर्डर लेटर फ्यू थिंग्स विल चेंज। अब देखो यहाँ पर इन्होंने सिर्फ सेंडर्स एड्रेस इंक्लूड किया है, एंड यहाँ पर उन्होंने प्लेस बताई है, दे हैव मेंशन्ड द डेट ओवर हियर। नाउ डायरेक्टली दे हैव कम टू द सब्जेक्ट पार्ट, ठीक है। सब्जेक्ट क्या है, प्लेसिंग ऑर्डर फॉर स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, ठीक है। क्लियर सब्जेक्ट है, ज्यादा फैंसी इंग्लिश में मत पढ़ना, जो सिंपल स्टेटमेंट लगता है मेक दैट एज द सब्जेक्ट मैटर। सो सब्जेक्ट क्या है, प्लेसिंग एन ऑर्डर फॉर स्पोर्ट्स इक्विपमेंट। देन देखो डियर सर, यहाँ पर कॉमा आना चाहिए, यहाँ पर कॉमा कर लो डियर सर के बाद। हाँ, नेक्स्ट देखो, एज डिस्कस टेलीफोनिकली, नाउ यू सी द फर्स्ट पैरा ऑल्सो स्टार्ट्स ऑन एक्सट्रीम लेफ्ट। इफ यू रिमेंबर, आपको ना स्कूल में से बोलते थे 2 फिंगर स्पेस छोड़ के फिर स्टार्ट करो, वैसा नहीं करना, सब कुछ लेफ्ट हैंड साइड पे आना चाहिए, ठीक है। क्या लिखा है, एज डिस्कस्ड टेलीफोनिकली वी विश टू प्लेस अ बल्क ऑर्डर फॉर द सप्लाई ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स। फिर आपने एक टेबल बना दी, टेबल में आपने बता दिया आपको कौन से स्पोर्ट्स इक्विपमेंट चाहिए, उसकी क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए, और आपने वो ब्रांड या समथिंग व्हाटएवर इट इज स्पेसिफिकेशन दे दिया, ठीक है। ये क्या है, ये सब ब्रांड्स ही है ना, हाँ ठीक है। नेक्स्ट पैराग्राफ देखो, नेक्स्ट पैराग्राफ में दे हैव गिवन द डिटेल्स ऑफ द पेमेंट। देखो, द अबव मेंशन्ड इक्विपमेंट शुड रीच अस, अच्छा पहले इन्होंने शिपिंग के डिटेल्स बताए हैं, इट शुड रीच अस एटलीस्ट बाय 12 जुलाई, है ना। तो आपने एक मैक्सिमम डेट वाली दे दी, अपर लिमिट दे दी कि 15 जुलाई तक तो आ ही जाना चाहिए, ठीक है। उसके बाद क्या लिखा है, यू आर रिक्वेस्टेड टू इंश्योर दैट हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स आर सप्लाइड, है ना, कि आप उनके ऊपर रिलाई करोगे दैट दे विल सेंड यू गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स। देन अब यहाँ पर आते हैं पेमेंट के डिटेल्स। द इनिशियल अपफ्रंट पेमेंट ऑफ 20,000 इज इनक्लोज्ड चेक नंबर सो फॉर अमाउंट ऑफ ₹15,000। तो ये आप जब लेटर भेज रहे हो ना उनको, तो लेटर के साथ साथ आपने एक चेक को भी अटैच कर लिया है, ठीक है, और वो चेक का आपने नंबर लिख लिया है, चेक कितने अमाउंट का है वो भी आपने लिख लिया है। हाउ डिड वी अंडरस्टैंड कि ये लेटर के साथ चेक भेजा उन्होंने, द वर्ड इनक्लोज्ड सेज दैट दे हैव अटैच्ड द चेक अलोंग विद द लेटर, ठीक है। लास्ट लाइन देखो, एज डिस्कस टेलीफोनिकली द बैलेंस पेमेंट विल बी मेड एट द टाइम ऑफ डिलीवरी इन द फॉर्म ऑफ डिमांड ड्राफ्ट। तो आपने फर्स्ट जो अपफ्रंट है वो डीडी में सॉरी वो चेक में भेजा, और जो बैलेंस है वो कैसे करोगे, डिमांड ड्राफ्ट। अच्छा, डिमांड ड्राफ्ट कब दोगे, ऑन डिलीवरी, ठीक है, आफ्टर एडजस्टिंग द एप्लीकेबल डिस्काउंट, ठीक है। एन अर्ली डिलीवरी वुड बी अप्रिशिएटेड, लास्ट लाइन, एन अर्ली डिलीवरी वुड बी अप्रिशिएटेड। फिर जो ये होता है योर सिंसियरली, फिर जो नाम है वो लिखोगे, एंड उसका डेजिग्नेशन, सो हु इज राइटिंग दिस लेटर, द प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल में बी और वट एवर इट इज, ठीक है। यहाँ पर सिर्फ प्रिंसिपल लिखा है। समझा ये ऑर्डर लेटर, एक बार पढ़ो वापस से, विल राइट वन ऑर्डर लेटर ऑल्सो।
अब यहाँ पर ना उन्होंने फॉर्मेट फॉलो नहीं किया है. नाउ द लेटर विच यू विल राइट, जो मैं डिक्टेट करूंगी उसमें हम ये प्रॉपर पूरा फॉर्मेट फॉलो करेंगे. ठीक है, लिखो क्वेश्चन, राइट डाउन द क्वेश्चन. नोटबुक में हेडिंग दो चैप्टर नंबर 10 and write down the name of the chapter, formal letters. Should I dictate the question? लिखो, write an order letter, write an order letter to, write an order letter to Tajmeet Sethi, write an order letter to Tajmeet Sethi, Garden Hills, पुणे 30. ये एक ही लाइन में आपको लिखना है. मैंने ऐसे लिखा है, राइट इट इन स्ट्रेट लाइन. राइट अ ऑर्डर लेटर टू तजमीत सेठी, कॉमा गार्डन हिल्स, कॉमा पुणे 30, फॉर प्लेसिंग एन ऑर्डर, फॉर प्लेसिंग an order for kitchen equipments, for placing an order for kitchen equipments, for placing an order for kitchen equipments, full stop. ठीक है, क्या इसमें प्लेस करना है? व्हाट ऑर्डर यू आर गिविंग? यू वांट किचन इक्विपमेंट्स. ठीक है, नाउ स्टार्ट राइटिंग. मैं जो फॉर्मेट है थोड़ा बहुत आई मेक इट ओवर हियर. ओके, फर्स्ट क्या आता है देखो यहाँ पर फॉर्मेट में. व्हाट इज द फर्स्ट थिंग टू बी रिटन? सेंडर्स एड्रेस. करेक्ट. नाउ राइट डाउन एक्सट्रीम लेफ्ट हैंड पे एक लाइन छोड़ के राइट डाउन केलर किचन, केलर किचन, केलर किचन, रिंग रोज रोड, एक्सट्रीम लेफ्ट पे. हाँ स्टार्ट करो ना, मैं आंसर बता रही हूँ. वो तो आपको खुद से बनाना है ना. हाँ वो थोड़ी आपको डिटेल दिया जाएगा एग्जाम में. लिखो, राइट डाउन सेंडर्स एड्रेस, केलर किचन. नेक्स्ट लाइन पे लिखो रिंग रोज रोड. नेक्स्ट लाइन पर पुणे 32. यूजुअली ये जो एड्रेस है ना ये भी दिया जाता है क्वेश्चन में, बट इफ नॉट गिवन यू हैव टू मेक योर ओन. ठीक है, ये हो गया सेंडर्स एड्रेस. एक लाइन नाउ लीव वन लाइन, राइट डाउन. नेक्स्ट चीज क्या आएगी बताओ? डेट आएगा. करेक्ट. लिखो, यू कैन राइट एनी डेट. 20th August. नहीं डेट वर्ड मत लिखो. Leave a line, write down any date you want. नहीं ऊपर आएगा ना. इनफैक्ट इफ यू वांट ना डोंट राइट इट, क्योंकि देखो इन्होंने कैसे लिखा है 17 में लिखा है, 17th में नहीं लिखा है. सो रादर देन डोंट राइट TH. या लिखना है तो भी लिख सकते हो, कुछ गलत नहीं हो जाएगा. 20th August के बाद कॉमा देके देन राइट डाउन 2020 और वट एवर यू वॉन्ट. डेट लिखा. नाउ अगेन लीव वन लाइन, राइट डाउन. अब किसका एड्रेस आएगा? अब पहले नाम आएगा, नेम ऑफ द एड्रेसी. क्या नाम है उसका? किसको लिख रहे हो लेटर? तजमीत सेठी. राइट डाउन. अब लिखो, एक लाइन छोड़ के लिखो तजमीत सेठी. करेक्ट. आ गया नेम ऑफ द एड्रेसी. अगेन लीव वन लाइन, या रादर डू वन थिंग, डोंट लीव अ लाइन, डायरेक्टली उसका एड्रेस लिखो. एक ही एड्रेस दिया था ना, गार्डन हिल्स.
सो नेक्स्ट लाइन पर लिखो गार्डन हिल्स, लाइन मत छोड़ना। हाँ जो रिसीवर है उसके बाद लाइन को रिपीट कीजिए। हाँ, देन राइट डाउन पुणे, क्या था 30 ना। After writing this much you have to leave a line, then after writing date you have to leave a line. ठीक है, लिखा है सबने यहाँ तक? हाँ हाँ, ऑनलाइन वाले बताओ लिखा है तुमने यहाँ तक? पुणे 32 के बाद यहाँ पर फुल स्टॉप आएगा, कॉमा नहीं आएगा। ठीक है, हो गया? तो हमारा यहाँ तक कंप्लीट हो चुका है। चलो नेक्स्ट क्या आएगा? पहले सैल्यूटेशन नहीं आता है, पहले सब्जेक्ट आता है। यहाँ पर उल्टा दिया है, इधर इसको कर लो रिवर्स में। पहले हमेशा सब्जेक्ट आएगा फिर सैल्यूटेशन आता है। इधर कैसे दिया हुआ है नोट्स में? तो इधर फॉर्मेट में फिर गलत होगा। ठीक है, सो पहले क्या आएगा? सब्जेक्ट आएगा। राइट डाउन द वर्ड सब्जेक्ट। इसके बाद पुणे 30 के बाद लीव अ लाइन, राइट डाउन द वर्ड सब्जेक्ट ऑन एक्सट्रीम लेफ्ट हैंड। डू नॉट लीव स्पेसेस, सब कुछ लेफ्ट हैंड पे आना चाहिए। सो पुणे 30 के बाद लीव अ लाइन, राइट डाउन सब्जेक्ट, पुट अ कोलन, क्या लिखोगे? ऑर्डर फॉर किचन इक्विपमेंट्स, ऑर्डर फॉर किचन इक्विपमेंट्स। सब्जेक्ट में लिखो ऑर्डर फॉर किचन इक्विपमेंट्स। हमेशा कोशिश करना कि आपका सब्जेक्ट एक लाइन में खत्म हो जाए। ठीक है, डू नॉट ड्रैग इट टू। ठीक है, तो ऑर्डर सब्जेक्ट क्या है? ऑर्डर फॉर किचन इक्विपमेंट्स। नाउ अगेन लीव वन लाइन, राइट डाउन डियर सर, कॉमा। अगेन ये भी सब कुछ लेफ्ट हैंड पे आएगा। डियर सर, कॉमा। ठीक है, डियर सर, कॉमा हो गया। नाउ स्टार्ट राइटिंग फ्रॉम द नेक्स्ट लाइन, आई एम डिक्टेटिंग। अब आएगा इंट्रोडक्टरी, इसमें भी स्पेस मत छोड़ना। अगेन एक्सट्रीम लेफ्ट हैंड पे डियर सर के बाद यहां से लिखना स्टार्ट करो, यहां से राइट डाउन। हाँ, एज डिस्कस्ड टेलीफोनिकली, एज डिस्कस्ड टेलीफोनिकली, एज डिस्कस। देखो यहाँ पर स्टार्टिंग आप यही चूज कर सकते हो, एज डिस्कस टेलीफोनिकली, जो यहाँ पर लिखा हुआ था मैंने हाईलाइट कर दिया है। एज डिस्कस्ड टेलीफोनिकली, कॉमा, we wish to place an order, we wish to place an order, we wish to place an order for following equipments, for following equipments। ठीक है, for following equipments। I'll repeat the line again, as discussed telephonically, comma, we wish to place order for following equipments। ठीक है, now leave a line and you have to make a table। मैं आपको ये बता देती हूँ, पहले आएगा सीरियल नंबर, फिर आएगा आइटम, देन विल कम क्वांटिटी, और फिर आएगा स्पेसिफिकेशन। ठीक है, ये चार आपको बनाने हैं, 1 2 3 4 and 5, ऑलमोस्ट 5 लाइन्स। तो मेक इट 6-7 लाइन्स का बना दो, बिकॉज वी रिक्वायर 5 लाइन्स। चलो क्विकली मेक अ टेबल। serial number, item, quantity, specification। I am writing few things। लिखो serial number में write down 1, item में लिखो कुकर, quantity आएगी 3 पीस, specification लिखो prestige, एंड ब्रैकेट में लिखो 5 kg।
वेरी गुड. चलो लिखो फटाफट. दिख रहा है ना तुमको? सीरा. शीरा नहीं है, सीरा. हाँ ठोको. यू कैन पुट XX ऑल्सो इधर स्पेसिफिकेशन में. अमाउंट तुम डिसाइड करोगे क्या? तुम बायर हो ना? First is cooker, dinner set, stove, cooking pan, coffee mugs. Oh God. मतलब ऐसा नहीं है, मतलब दिखा नहीं है. चलो फटाफट लिखो. क्या एक ही नहीं लेटर लिख रहे हैं आज? और हैं 2-3. तुम एक और कॉलम बना सकते हो आफ्टर स्पेसिफिकेशन कलर अगर चाहिए तो. सो यू कैन राइट ब्लैक, व्हाइट, मेटालिक, रेड. नको. हाँ. इतना ही आ जाए तो नसीब. हो गया. अगर स्पेसिफिकेशन का कॉलम नहीं भी बनाओगे ना तो भी चलेगा. सो दे विल नॉट कट मार्क्स. चलो. after making this table, leave a line and start writing from extreme left. Write down. लिखो the above mentioned items. after leave a line after the table. extreme left पर लिखो the above mentioned items should be delivered to yes, you can make your own brand names also, so they will not verify whether the brand name is real or existing or not. Okay. Yes, write down the above mentioned items should be delivered to Keller Kitchen should be delivered to Keller Kitchen latest by अच्छा. अभी तुमने डेट ऊपर कौन सी लिखी है बताओ. वो डेट से लेके सम 15 डेज के बाद वाली डेट लिखो. शुड बी डिलीवर्ड लेटेस्ट बाय एंड देन उससे जो भी डेट लिखी है लीव 15 डेज एंड देन राइट डाउन दैट पर्टिकुलर डेट. The above mentioned items should be delivered to Keller Kitchen latest by and then write down the date. Full stop. Latest by ठीक है. Then write down. Full stop के बाद लिखो. Continue करो. 30% of the payment. 30% of the payment is done through check.
30% ऑफ द पेमेंट इज डन थ्रू चेक, मतलब आपने चेक बहुत पहले भेज दिया है, ठीक है, ऐसा आपने बताया है यहाँ पर। द 30% ऑफ द पेमेंट इज डन थ्रू चेक एंड रिमेनिंग विल बी डन इन कैश on the date of delivery, and the remaining will be done in cash on the date of delivery. ठीक है, full stop. Now again leave one line and line leave करने के बाद next line पर ये लिखो, and early delivery would be appreciated. Next page. हाँ, and early delivery would be appreciated. ठीक है, now again leave a line, and early delivery would be appreciated. Again leave a line, write down yours sincerely, yours ऐसे लिखना है, आर के ऊपर अपॉस्ट्रोफी नहीं आएगा, yours sincerely के बाद पुट अ कॉमा, yours faithfully भी लिख सकते हो, whatever you can write, yours sincerely पुट अ कॉमा, नेक्स्ट लाइन पर लिखो मोहित रॉय, और यू कैन राइट एनी नेम रादर, yours sincerely कॉमा, नेक्स्ट लाइन पर लिखो मोहित रॉय, लिखा मोहित रॉय। नाउ अगेन नेक्स्ट लाइन पर लिखो मैनेजर, नहीं चाहिए तो लिखो ब्रैकेट में, नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा, मोहित रॉय, नेक्स्ट लाइन पर राइट डाउन मैनेजर, एंड नेक्स्ट लाइन पर राइट डाउन केलर किचन। ठीक है, ये सारी चीजें नेक्स्ट अलग अलग लाइन पर आएंगी। क्या नहीं बैठ रहा है? तो तुमको बोला किसने वो लास्ट लाइन में ऐसे सब वो करने के लिए? वो मार्क्स कट होंगे यहाँ। अगर सिर्फ एक केलर किचन भी नेक्स्ट पेज पर आता है ना, राइट इट ऑन द नेक्स्ट पेज एंड लीव दैट एंटायर पेज। गेटिंग मी? ये जो लास्ट में हमने ये सपोज यहाँ पर प्रिंसिपल लिखा है, उसके लिए आपको स्पेस नहीं है, एक लाइन नहीं है, राइट इट ऑन द नेक्स्ट पेज। वो नीचे जो स्पेस है उधर मत लिखो, समझा? क्योंकि तुमने फीस पे की है ना, तो सप्लीमेंट लगेगा तो दे देंगे वो। चलो, आई रिपीट द लास्ट थिंग अगेन। The above mentioned items should be delivered to Keller Kitchen latest by, फिर जो डेट आपने लिखी है, 30% of the payment is done through check and the remaining will be done in cash on the date of delivery. फिर आपने ये लाइन लिखा है, and early delivery would be appreciated. Then you have left a line and you have written yours sincerely, comma Mohit Roy. Next line पर manager, put it in the brackets if you want, and next line पर Keller Kitchen. ठीक है, डन? समझाए पूरा लेटर ये? सो दिस इज ऑर्डर लेटर। कम टू द नेक्स्ट वन, लेटर ऑफ कंप्लेंट, कंप्लेन लेटर। ओके, देखो थोड़ा इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं। In the business world, where selling and providing services to fulfill the needs of the customers plays an important role, there will also be scope for complaints raised by the customers due to several reasons. A letter of complaint enables us to notify an individual, company, or a business that we are dissatisfied with the product purchased or services received from them. Writing a complaint letter is effective and professional way to get the problems solved. ठीक है ना? देखो ये थोड़ा आपको ये recommendations दिए हैं। Give a clear and detailed description of the problem. Include important dates. What action you want to be taken up. Ask for a response. Attach a copy for supporting documentation. Never make personal allegations. Avoid discussing any other concern besides the complaint issue. ठीक है, so stick to the complaint, जो आपको प्रॉब्लम है उसी पर फोकस होना चाहिए। अगेन फॉर्मेट वही है, सेंडर्स एड्रेस, डेट, फिर जिसको लिख रहे हो और जिसको जहां पर पहुंचाना है उसका एड्रेस आएगा,
देन अगेन सब्जेक्ट यहाँ पर पहले आएगा, सैल्यूटेशन बाद में आएगा. सब्जेक्ट क्या है? कंप्लेंट अगेंस्ट द ऑर्डर नंबर एंड यू हैव रिटन एनी रैंडम ऑर्डर नंबर. अब स्टार्ट होता है द मेन पार्ट. देखो, दिस इज विथ रेफरेंस टू ऑर्डर नंबर सो एंड सो मेड ऑन December 1. द ऑर्डर comprised of 6 two-tone split air conditioners of so-so brand and 4 1.5-ton window air conditioners of XYZ brand. As per the agreement, the products were to be delivered within 10 days and a representative was to be sent for installation and demo. Unfortunately, only half of the order has been delivered and no representative has visited for installation of demo. So if I say, आपने इंट्रोडक्टिव पैराग्राफ में ही आपका जो प्रॉब्लम है वो स्पेसिफाई कर लिया है. ठीक है, फर्स्ट लाइन में आपने ये बताया कि अग्रीड क्या था, क्या अग्रीड था, ये सब चीजें अग्रीड थी, पर हुआ क्या? अनफॉर्चुनेटली ओनली हाफ ऑर्डर हैज बीन डिलीवर्ड और कोई डेमो देने के लिए भी नहीं आया है. तो यू हैव स्टेटेड द प्रॉब्लम इन द फर्स्ट पैरा. नेक्स्ट देखो, the fact that you have taken undue time and have not yet delivered the order has caused us great embarrassment and inconvenienced our clients. In addition, we have received no correspondence from your side explaining the delay. Kindly ensure that the remaining items are delivered to us before so and so, failing which payment will be stopped. तो आपने कंक्लूजन पैराग्राफ में आपने ये कॉन्सिक्वेंस बता दिया है कि अगर आप नहीं भेजते हो तो पेमेंट फिर हम नहीं, वी विल स्टॉप एंड द ऑर्डर विल बी कैंसिल्ड. ठीक है, ये भी आपने बता दिया कि अगर आप जो मांग रहे हो अगर वो नहीं करते तो देन व्हाट consequences they will have to bear. I sincerely request you to look into this matter and do the needful. And again, thanks, regards and the details. क्या नहीं है? किस दर है ना, लिखा होगा ना, सिर्फ जनरल मैनेजर है. ठीक है, सो लिख सकते हो पर आप. ठीक है, गिव द हेडिंग इन योर नोटबुक कंप्लेंट लेटर. ये समझा है कंप्लेंट लेटर कैसे ड्राफ्ट करना है, द मेन पार्ट. बाकी देखो फॉर्मेट तो हर लेटर में सेम ही है. Okay, question लिखो. I'm dictating the question. You bought a printer a few days back. You bought a printer a few days back from a leading chain of electronic stores. From a leading store, from a leading chain of electronic stores, full stop. You bought a printer a few days back from a leading chain of electronic stores, full stop. Now you found a few defects in it. Now you found a few defects in its working. Now you found few defects in its working. Full stop. Now you found few defects in its working. Next line पर लिखो, write a letter. Write a letter. देखो एग्जाम में आपको स्पेसिफाई नहीं करेंगे कि आपको कंप्लेंट लेटर लिखना है, आपको क्वेश्चन पढ़ के समझना चाहिए. प्रिंटर खरीदा, डिफेक्ट्स निकले, तो क्या कौन सा लेटर लिखोगे? ऑर्डर लेटर लिखोगे क्या? नहीं ना, कंप्लेंट लेटर लिखोगे. सो राइट डाउन, राइट अ लेटर टू द डीलर. यहाँ पर इनफैक्ट मेंशन किया है उन्होंने, राइट अ लेटर टू द डीलर कंप्लेनिंग अबाउट द प्रॉब्लम, कंप्लेनिंग अबाउट द प्रॉब्लम and requesting him to rectify the problem, and requesting him to rectify the problem or replace the printer, or replace the printer.
ठीक है, I'll repeat the question again. You bought a printer a few days back from a leading chain of electronic stores. Now you found a few defects in its working. Write a letter to the dealer complaining about the problem and requesting him to rectify the problem or replace the printer. ठीक है, this is the question. Leave a line and start writing. देखो फर्स्ट क्या आएगा, सेंडर्स एड्रेस, राइट डाउन XYZ कॉर्पोरेशन. यहाँ पर आपको सेंडर्स एड्रेस या रिसीवर एड्रेस कुछ दिया है क्या क्वेश्चन में, सब अपने आप से ही बनाना है. सो लिखो XYZ कॉर्पोरेशन, राजीव चौक, कॉमा पुणे. नहीं यहाँ पर कॉमा नहीं आएगा, सॉरी, डोंट पुट अ कॉमा ओवर हियर, पुणे. ठीक है, फिर लीव अ लाइन, राइट डाउन डेट, 21st August, 2020. ठीक है, then again leave a line, write down leading chain of electronics, sorry, leading chain, the leading chain आएगा, the leading chain. नेक्स्ट लाइन पर आएगा फिर इलेक्ट्रॉनिक स्टोर्स एंड देन पुणे. सो इसके बाद यू हैव टू लीव अ लाइन, देन डेट के बाद एंड इसके बाद. ठीक है, नहीं बाबा, नो वाइटनर फाइटनर. ठीक है, सो सेंडर्स एड्रेस, डेट, यहाँ पर चाहिए तो आप नाम लिख सकते हो इसका, जैसे यहाँ पर जनरल मैनेजर लिखा था ना, सो यू कैन राइट ओवर हियर अगेन द जनरल मैनेजर ओवर हियर एंड स्पीकिंग ऑफ. एक सिर्फ पेंसिल से मार्क करके रखो, दैट इफ यू वांट यू कैन राइट इट. ठीक है, ना अभी ये जो यहाँ पर पुणे लिखा है, उसके बाद लीव अ लाइन, राइट डाउन आफ्टर पुणे, लीव अ लाइन, राइट डाउन सब्जेक्ट, लिखो द वर्ड, यू हैव टू राइट द वर्ड सब्जेक्ट, पुट अ कोलन, राइट डाउन कंप्लेंट against the printer purchased, complain against the printer purchased, full stop. ठीक है, now start writing, leave a line, write down, क्या लिखोगे, dear sir oblique, हाँ हाँ, आफ्टर सब्जेक्ट लीव अ लाइन, राइट डाउन डियर सर ऑब्लिक मैम, यहाँ पर मैडम लिखा है, राइट डाउन मैम, ऐसे लिखना है. दिस इज द राइट स्पेलिंग, नॉट MAM और MAAM, ये राइट स्पेलिंग है, अपॉस्ट्रोफी विद एन अपॉस्ट्रोफी. सो क्या लिखा है, डियर सर ऑब्लिक मैम, अगेन लीव अ लाइन, राइट डाउन सब्जेक्ट लिखा है ना आपने, सब्जेक्ट, लीव अ लाइन, राइट डाउन डियर सर ऑब्लिक मैम, नाउ अगेन लीव अ लाइन एंड राइट डाउन, स्टार्ट राइटिंग, आई एम डिक्टेटिंग. हाँ डियर सर, नहीं सॉरी, डियर सर के बाद लाइन मत छोड़ना, हाँ उसके एकदम एग्जैक्टली नीचे लिखो, फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड, राइट डाउन दिस इज विथ रेफरेंस टू, दिस इज with reference to, this is with reference to bill number, this is with reference to bill number 1523, this is with reference to bill number 1523 made on July 25th, 2020.
This is with reference to bill number 1523 made on July 25th, 2020, full stop. The bill comprised of the bill comprised of a printer of XYZ brand. The bill comprised of a printer of XYZ brand. Okay, the bill comprised of a printer of XYZ brand, full stop. As per the instructions given by you, comma, the printer has some defects in it. The printer has some defects in it. As per the instructions given by you, comma, the printer has some defects in it, such as the printer has some defects in it, such as. Now start writing from the next line. लिखो यहाँ पर मार्जिन में A, पॉइंट A. अब हम डिफेक्ट्स को लिस्ट डाउन कर रहे हैं. पॉइंट A लिखो या पॉइंट 1 लिखो. हाँ मार्जिन में, हाँ मार्जिन में लिखो पॉइंट 1 या पॉइंट A. The ink of cartridge इंक के बारे में हम कौन सा डिफेक्ट लिख सकते हैं? द इंक ऑफ कार्ट्रिज लीक्ड. हाँ लिखो ऐसे ही फिर. द इंक ऑफ कार्ट्रिज happened to leak. The ink of cartridge happened to leak. This is the first defect. Second defect लिखो मार्जिन में पॉइंट नंबर 2. The printer started making some noises while printing. The printer started making some heavy noises while printing. This is second defect. Third defect लिखो. There were also some sparkles coming from the printer. एक स्टूडेंट ने लिखा है, I don't know how and why she's written these defects. There were also some sparkles. Spark. What is the meaning of spark? चिंगारी. Sparkle नहीं ना, इसमें sparkle लिखा है. लिखो spark. There were also some light spark or sparks coming from the printer. बस तीन ही डिफेक्ट्स लिखो. तो एक आपने इंक का लिखा है, द इंक ऑफ द कार्ट्रिज हैपेंड टू लीक. द प्रिंटर स्टार्टेड मेकिंग सम हेवी नॉइजेस व्हाइल प्रिंटिंग. एंड थर्ड लिखा है, देयर वर आल्सो सम स्पार्क्स कमिंग फ्रॉम द प्रिंटर. ठीक है, 3 डिफेक्ट्स. नेक्स्ट लाइन पर लिखो. The fact that, next line पर, don't leave a line, next line पर, the fact that the printer is not according to the specifications. The printer is not according to the specifications, has caused great inconvenience. The fact that printer is not according to the specifications has caused us great inconvenience. ठीक है, has caused us great inconvenience. Full stop. Next line पर लिखो. Kindly ensure that the problems mentioned above
are rectified to its earliest, are rectified to its earliest. ठीक है, are rectified to its earliest. Now leave a line and write down, leave a line, write down. देखो यहाँ पर जैसे लिखा है thanks and regards, thanks and regards, thanks and regards, then again leave a line. फिर आप यही कॉपी कर लो, उसका नाम, सीनियर मैनेजर और ये जो डिपार्टमेंट दिया हुआ है. ठीक है, थैंक्स एंड रिगार्ड्स के बाद लीव अ लाइन एंड कॉपी दीज 3 थिंग्स एज इट इज. नहीं आना चाहिए बट मत दो कॉमा थैंक्स के बाद, जस्ट थैंक्स एंड रिगार्ड्स, फुल स्टॉप. या रिगार्ड्स के बाद फुल स्टॉप. वो योर्स फेथफुली थोड़ी है. दैट्स नॉट अ, दिस इज नॉट अ कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज. Because complained है ना, so you are not as such complimenting them. ठीक है. Now come to the next letter. चलो ये आप अभी पढ़ो. फोर्थ लेटर क्या है? रिप्लाई टू द लेटर ऑफ कंप्लेंट. अब लेटर ऑफ कंप्लेंट बना दिया, अब उसको रिप्लाई का है लेटर. पढ़ो अभी का अभी, जस्ट रीडिंग है इसमें. क्विकली रीड दिस.